So I'm starting a three-column cash book. A three-column cash book. So first of all, I will make the format that how a three-column cash book is made. The structure of three-column cash book. So right hand side is the debit side. This right hand side is the debit side. So debit side we will make three column. One for bank. I am writing B. B for bank. One for cash. And one for discount. Sir, what is discount? I am explaining this thing. Just wait. Same goes here, same goes over there. On credit side, we will make three column. One for bank. Okay. One for cash. And one for discount. So you are seeing over here that there is a debit side and this is a credit side. When cash comes in, we write on the debit side of cash account. Whenever there is increase in cash, we will write it on the debit side. Whenever we deposit money in the bank or when something comes into the bank, we debit the bank side, the bank column. And the opposite side, credit side of cash and bank. So here, when something goes out from cash or when there is decrease in cash or when we are doing payment in cash, we will credit the cash account. And if we are doing payment from our bank, we will credit our bank account. So what is this D? D stand for discount. So I want to clarify it here. Discount means relaxation. Discount means relaxation, relief. In accounting, when you do business, so sometime in order to increase your sale and sometime in order to increase your liquidity that you have more money is available, sometime हम क्या करते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कि हमारी सेल ज्यादा हो और समटाइम हमारे साथ पैसों का मसला होता है तो हम बोलते हैं हमारे पास पैसे ज्यादा से ज्यादा हो हमें परेशानी नहीं हो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी कि हमारी लाइबिलिटीज पे करने की सलाहियत हम बोलते हैं ये अच्छी हो पैसे ज्यादा हो हमारे पास पैसे कम ना हो तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट दो तरह का होता है एक को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट एक को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट कब अराइज होता है ट्रेड डिस्काउंट तब अराइज होता है when you sell your goods when business sells goods in bulk या जब कोई बंदा बल्क में परचेज करता है तब ये अराइज होता है ट्रेड डिस्काउंट क्या है कभी कभार आपने देखा होगा शॉप्स के बाहर लिखा होता है 30% ऑफ कभी कभार लिखा होता है फ्लैट 50%. Have you seen this? Whenever there is Ramzan or whenever there is Eid or when there is any event, so businesses try to promote their product by giving discount 30% off, 10% off, buy one, get one free, 50% off. Have you seen this? Have you observed this? So why they give these type of discounts, these type of relaxation in payment? ऐसा क्यों करते हैं? I'm asking from you people, why businesses give trade discount? Trade discount क्यों दे रहे होते हैं? क्या रीजन होता है इसके पीछे? So that the people buy their products. So that they can sell their product more. So there might be a quantity of goods available with them, and they want to overcome it, and they want to earn more profit. So इसलिए क्या नाम है वो कोशिश करते होंगे लाइक गर्मी का मौसम है अब सर्दियां शुरू हो गई तो गर्मी में जो ड्रेसेस यूज होती हैं वो कॉटन की होती हैं लॉन की होती हैं सर्दियों में जो ड्रेसेस यूज होती हैं वो खद्दर की होती हैं वो मोटी टाइप के कपड़े की होती हैं तो जो गर्मियों की ड्रेस है वो फिर किसी काम की नहीं होगी
वो पड़े पड़े खराब हो जाएगी, गोदाम में इतनी जगह नहीं होगी, देयर माइट नॉट बी अ सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल इन वेयर हाउस। तो इसको कैसे ओवरकम किया जाए, इसको कैसे मैनेज किया जाए, इसके लिए बिजनेसेस क्या करते हैं, देन डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट क्यों देते हैं, ताकि ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा माल खरीदें, और इसका फायदा ये होगा कि हमारा माल निकल जाएगा, तो प्रॉफिट भी हो जाएगा, बाद में बेचेंगे नुकसान होगा, क्योंकि वो चीजें आउटडेटेड हो जाती हैं। समटाइम जो इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स होते हैं वो आउटडेटेड हो जाते हैं, समटाइम फैशन आउटडेटेड हो जाता है। लाइक मार्केट में एक ड्रेस फैशन के अंदर है, हो सकता है अगले साल उसका फैशन खत्म हो जाए, अगले साल उससे ज्यादा अच्छे डिजाइन आ जाए, अगले साल उससे ज्यादा नया फैशन शुरू हो जाए। तो सम टाइम चीजें आउटडेटेड हो जाती हैं, सम टाइम चीजें पड़े पड़े खराब हो जाती हैं, सम टाइम चीजों की वारंटी खत्म हो जाती है। तो बिजनेस कोशिश करते हैं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा माल बिके, ताकि हमें फायदा भी हो, और हम आगे जाके जो नुकसान होना है इससे ही बच जाएं। दिस इज नॉन एज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एडजस्टमेंट जरूर होती है, लेकिन ये अलग से रिकॉर्ड नहीं होता। वी डोंट मेक एनी टी अकाउंट। हम इसके लिए कोई टी अकाउंट नहीं बनाते, हम इसके लिए कोई कॉलम नहीं बनाते, हम ट्रेड डिस्काउंट को अलग से डेबिट एंड क्रेडिट नहीं करते। सो मैं इसके लिए वर्ड यूज करूंगा, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। ट्रेड डिस्काउंट की एडजस्टमेंट्स होती हैं, एडजस्टमेंट्स कैसे होती है बताऊंगा, लेकिन इट इज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन बुक्स। मतलब अगर आपने किसी को ट्रेड डिस्काउंट दिया है, सो इट इज नॉट एन एक्सपेंस फॉर यू। और अगर आपने कोई ट्रेड डिस्काउंट लिया है, तो वो आपके लिए कोई इनकम नहीं है कि इसको अलग से हम रिकॉर्ड करें, ट्रेड डिस्काउंट को इनकम या एक्सपेंस के ऊपर शो करें, या ट्रायल बैलेंस में शो करें, या इसका टी अकाउंट बनाए। ऐसा नहीं होता। इट इज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन बुक्स। क्या मतलब, मैं जरा आपको समझाता हूँ। आपको पेपर में ट्रांजेक्शन दी जाएगी, सोल्ड गुड्स लिस्ट प्राइस $900। लिस्ट प्राइस किसे कहते हैं? लिस्ट प्राइस वो होती है जो उस पर लिखी होती है। कभी भी कोई चीज आप लेने जाते हैं ना, तो उस पर एक प्राइस लिखी होती है, उस पर स्टिकर होता है, या उस पर लिखी होती है कि इस बुक की प्राइस इतनी है। तो जब भी आप कोई चीज बाय करने जाते हैं, जाहिर है उस पर लिखी होती है, प्राइस टैग की होती है। तो लिस्ट प्राइस वो प्राइस है जो रेगुलर प्राइस है, जो उस प्रोडक्ट पे लिखी हुई नजर आ रही होती है, जो हर बंदा देख सकता है। नॉर्मल प्राइस, रेगुलर प्राइस जो उस आइटम की है। आप अभी कभी ऑनलाइन कोई चीज बाय करने जाएंगे ना, तो वहां लिखा आ रहा होगा ये चीज इतने की, ये चीज इतने की है। तो वो लिस्ट प्राइस होती है। तो सोल्ड गुड्स लिस्ट प्राइस लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड गुड लिस्ट प्राइस 900 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? नॉर्मली जब हम कोई चीज बाय करते हैं, फॉर सपोज अगर मैं चीज उधार पे बाय की है, मैं लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ, ट्रांजेक्शन ऑन क्रेडिट फ्रॉम ABC। अगर ये चीज हमने उधार पे बाय की है, क्रेडिट पे बाय की है, तो सर क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? तो आप सबको पता है, जब हम उधार पे सामान बेचते हैं, उधार पे सेल्स करते हैं, तो हम सेल्स के अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और डेबिट किसको करेंगे? क्योंकि उधार पे बेचा है, हमें अगली पार्टी से पैसे लेने हैं, तो उस पार्टी को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। आर यू देयर? ऐसे ही करते हैं ना। अगर हम सामान सेल करते हैं, तो हम सेल्स को क्रेडिट करते हैं, और जिस पार्टी को बेचते हैं उसको डेबिट करते हैं। ऐसा ही है ना बेटा? आर यू देयर? Yeah. क्या? अब सुनिएगा। अब ये जो है ना लिखा हुआ है, लेस ट्रेड 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये जो लिखा हुआ है ना, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? इसके लिए कोई अलग से टी अकाउंट नहीं बनेगा, नहीं अलग से कॉलम बनेगा। जो रेगुलर एंट्री है वही करेंगे, लाइक सेल्स क्रेडिट ABC डेबिट। लेकिन इसका इम्पैक्ट आएगा, वो इम्पैक्ट ये है कि ये 10% आपने इसमें से माइनस करना होगा। आप अगर जाए ना 30% ऑफ, तो अगर वो चीज 1,000 रुपए की होगी, तो आपको 1,000 रुपए नहीं पे करने पड़ेंगे। जब पेमेंट का टाइम आएगा, वो 1,000 रुपए नहीं लेगा, 1,000 रुपए में 30% माइनस करेगा, आपसे 700 लेगा। 700 लेगा। और वो जो आपको रिसीट मिलेगी, उस पर लिखा होगा कि ये चीज 900 की है, या 1,000 रुपए की है, और इस पे हमने 30% माइनस किया। ठीक है? तो इसका इम्पैक्ट आएगा, इम्पैक्ट से मुराद 900 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। कैसे माइनस होगा? आप 900 का 10% निकालें, कितना आएगा? 900 का 10% कितना आएगा? जी गाइस,
चैट में ही बता सकते हैं, वैसे ही बता सकते हैं। जी बेटा, 900 का 10%। शाबाश बेटा, 90 आएगा। तो 900 में से हम 90 माइनस कर देंगे, द आंसर विल बी 810। 810। तो इस तरीके से इसकी एंट्री होगी। तो इसका इम्पैक्ट आता है, इम्पैक्ट से मुराद ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं हम लिस्ट प्राइस में से, और जो आंसर आता है एंट्री में वो अमाउंट लिखते हैं। बाकी नॉर्मल एंट्री होती है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। परचेज, सॉरी गाइस, परचेज गुड्स, list price $1,500 less $200. $200 trade discount from XYZ। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर सवाल में क्रेडिट का वर्ड ना लिखा हो, अगर ट्रांजैक्शन में क्रेडिट का वर्ड ना लिखा हो, किसी पार्टी का नाम हो, तो ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। परचेज गुड्स और सवाल में क्रेडिट का वर्ड नहीं हो, पार्टी का नाम हो, तो भी ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या होता है, जो भी रेलेवेंट अकाउंट्स होते हैं उसके साथ पर्सन का अकाउंट भी आता है। जिस पार्टी को हमने सामान दिया होता है या खरीदा होता है, उसका नाम भी आता है। तो पहले तो मुझे बताएं इसकी एंट्री क्या होगी, अमाउंट छोड़ें, पहले मुझे बताएं एंट्री क्या होगी, क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे। क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे। शाबाश, एक्सीलेंट महा बेटा। हम लोग क्या करेंगे, परचेज के अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है। और दूसरा, XYZ के अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब मसला आता है अमाउंट का। अमाउंट यहाँ लिखा हुआ है 1500 लेस 200 ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या करेंगे, अमाउंट कितना लिखेंगे, मैंने बताया था ना कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस जरूर होगा। अगर वो परसेंटेज में है तो परसेंटेज निकाल के माइनस करेंगे। अगर उसने अमाउंट बोला है, यहाँ 200 बोला हुआ है, इसने अमाउंट दिया हुआ है आपको, तो आप 200 माइनस कर लें। तो बताएं क्या आंसर आएगा। 1500 में से अगर ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लें, इफ वी डिडक्ट 200 फ्रॉम 1500, व्हाट वुड बी द आंसर। शिजा बेटा शाबाश, बहुत आला। 1300 आंसर आएगा। तो 1300 की एंट्री हो जाएगी परचेसेस डेबिट और XYZ क्रेडिट। इज इट क्लियर। यहां तक बातें क्लियर है। ठीक है बेटा, ओके ओके ओके। चलिए जी, तो ये ट्रेड डिस्काउंट था। तो ट्रेड डिस्काउंट कैश बुक में आता है, नो सर। उसकी वजह क्या है, ट्रेड डिस्काउंट मोस्टली तब अराइज होता है जब आप सेल करते हैं, या जब आप परचेज करते हैं, या जब रिटर्न होती है। तो अगर सेल एंड परचेज क्रेडिट पे है, तो पहली बात तो ये कि एंट्री आएगी ही नहीं। एंट्री तो आएगी नहीं, क्योंकि जब आपने क्रेडिट पे एक चीज बाय की है तो उसमें कैश इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। लेकिन समटाइम जब हम पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करते वक्त आपने ख्याल करना होगा, वो एंट्री फिर आएगी। ठीक है। तो पेमेंट करते वक्त भी डिस्काउंट होता है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। अगर आपने सेल एंड परचेज क्रेडिट पे की है तो ट्रेड डिस्काउंट तो आता ही नहीं उसमें, यानी एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं होगी कैश बुक में। लेकिन अगर ये ट्रांजेक्शन कैश पे हो, सेल एंड परचेज की ट्रांजेक्शन कैश पे हो, और उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी हो, तो आपने ट्रेड डिस्काउंट फिर माइनस करना होगा। ठीक है। फिर एंट्री इसी तरीके से होगी जिस तरह ऊपर मैंने की है। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, एक तो आ गया हमारा सामान जल्दी बिके। एक तो आ गया कि भाई हमारा सामान जल्द अज जल्द बिके ताकि पड़े पड़े खराब ना हो। दूसरा मसला बिजनेस का होता है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी का मतलब ये, हर बिजनेस चाहता है हमारे पास कैश ज्यादा से ज्यादा हो। हर बिजनेस चाहता है हमारे पास सफिशिएंट कैश हो लाइबिलिटीज पे करने के लिए। तो उसके लिए जरूरी है कि आप जब भी सामान उधार पे बेचें, तो उसके अगेंस्ट जल्दी पैसे कवर करें। अगर आप चाहते हैं आपको पैसे जल्दी, आप चाहते हैं आपके पास कैश अवेलेबल हो, सप्लायर को देना हो तो अवेलेबल हो, खर्चे पे करने हो तो अवेलेबल हो,
तो जितना भी माल आप उधार पे लेते हैं, आपने कोशिश करनी चाहिए कि उसके अगेंस्ट पैसे जल्दी कवर हो। तो क्या करेंगे पैसे जल्दी मिले? कोई टॉफी तो बताएं। अगर मैं मुझे एक बंदा पैसे नहीं दे रहा, तो मैं ऐसा कौन सा अच्छा काम करूं या पॉजिटिव काम करूं कि वो पैसे जल्दी दे दे? जी। व्हाट शुड आई डू फॉर प्रॉम्प्ट रिकवरी? मुझे जल्दी पैसे मिले, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? टू टेल मी। जी बेटा। वहां बेटा डू ट्राई। अगर इफ वी वांट टू रिकवर द अमाउंट अर्लियर, if someone is delaying the payment, he is not giving us the payment. So what should we do in order to recover the amount quickly, in order to recover the amount earlier? And in what thing you are confused? आप किस चीज में कंफ्यूज हैं बताएं? डू टेल मी, आपको किस चीज में कंफ्यूजन आ रही है? अच्छा अच्छा अच्छा, कि हम अगर अमाउंट रिकवर करें तो क्या करेंगे? ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए बेटा, सम टाइम ऐसा होता है कि हमें एक पार्टी पैसे नहीं दे रही। फॉर सपोज हमें उससे देने हैं 10,000 रुपए। तो वो ये कहता है कि आई डोंट हैव 10,000, या 10,000 मैं आपको 2 महीने के बाद दूंगा। तो मैं ऐसा क्या करूं कि वो मुझे पैसे दे दे और जल्दी दे दे? तो उसके लिए मैं उसको कहता हूँ, इफ यू वुड पे विद इन 20 डेज। मैं उसको बोलूंगा इफ यू वुड पे विद इन 20 डेज। उसने मुझे बोला है मैं 2 महीने के बाद पे करूंगा, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ अगर तुम 20 डेज में मुझे पेमेंट करो तो मैं $3,000 छोड़ दूंगा। मतलब उसको अगर पेमेंट करनी पड़ेगी 20 डेज के अंदर, तो वो 7,000 होगी। 10,000 में 3,000 में छोड़ दूंगा। तो अगर मैं किसी बंदे से पैसे रिकवर करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये जल्दी रिकवर हो जाए, तो उसको मैं डिस्काउंट दूंगा। डिस्काउंट से क्या होगा? उसका बर्डन कम हो जाएगा, उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। वैसे उसको 10,000 देने थे, लेकिन डिस्काउंट की सूरत में उसको सिर्फ 7,000 देने पड़ेंगे, क्योंकि 3,000 माइनस हो जाएगा, उसके पैसे बच जाएंगे, उसके पास एक्सेस अमाउंट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। तो बाज दफा डिस्काउंट एक बेनिफिट होता है, आपके लिए हो सकता है एक्सपेंस हो, दूसरी पार्टी के लिए बेनिफिट होता है, और इस डिस्काउंट की वजह से वो पैसे जल्दी देता है। तो ऐसा डिस्काउंट जो रिकवरी पर्पस के लिए हो, ऐसा डिस्काउंट जो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए हो, ऐसा डिस्काउंट जो कि बल्क बाइंग के लिए ना हो। बल्क बाइंग के लिए ट्रेड डिस्काउंट आता है। तो ऐसा डिस्काउंट जिसमें आप अमाउंट जल्दी रिकवर कर सकें, ऐसा डिस्काउंट जिसका ताल्लुक लिक्विडिटी के साथ हो, ऐसे डिस्काउंट को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ये रिकॉर्ड होता है, ये रिकॉर्ड होता है, ये डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो फायदा है वो हकीकी फायदा है। अगर आपको 10,000 रुपये देने थे और अब आपको 7,000 देने पड़ रहे हैं, तो 3,000 आपके बच रहे हैं, जो कि कंपलसरी पेमेंट थी। तो ये डिस्काउंट बाकायदा रिकॉर्ड होता है, इसके लिए टी अकाउंट भी बनता है डिस्काउंट का, और ये ट्रायल बैलेंस में भी आता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी आता है, और ये टी अकाउंट्स के अंदर भी आता है। तो ये डिस्काउंट दो तरह का होता है। एक वो होता है, पहले मैं लिख दूं, ये डिस्काउंट होता है फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट होता है। ठीक है, हमें अमाउंट जल्दी रिकवर होगा। तो ये डिस्काउंट दो तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। ये एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए। और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। ये बिजनेस के लिए इनकम होता है। ठीक है, दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। एक होता है डिस्काउंट अलाउड, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। रीजन ये होता है हम अलाउ कर रहे हैं, हम दे रहे हैं। अमूमन ये कस्टमर्स के लिए होता है, टू रिकवर द अमाउंट या टू इनकरेज कस्टमर। हम ये डिस्काउंट अपने टू पे द अमाउंट, ठीक है,
ये डिस्काउंट किसके लिए होता है? कस्टमर्स के लिए होता है, ताकि वो अमाउंट हमें जल्दी दें। जो पैसे उनके बकाया हैं, जो एरियर्स हैं, वो जो ड्यूज हैं, वो जल्द अज जल्द हमें दे दें। तो जाहिर सी बात है ये एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि अगर मुझे किसी पार्टी से हज़ारों रुपए लेने हैं तो मैं छोड़ूंगा। अगर मुझे किसी पार्टी से 8,000 रुपये लेने हैं, तो जब मैं ये डिस्काउंट दूंगा तो 8,000 से कम पैसे मिलेंगे, 6,000 मिलेंगे, 7,000 मिलेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंस। और इसको डिस्काउंट अलाउ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हम दे रहे हैं, हम अलाउ कर रहे हैं। हमें एक पार्टी से 8,000 रुपये लेने हैं, तो हम उसको कहते हैं आप 7,000 दे दो। ठीक है, इसके लिए एक टाइम पीरियड होता है, ये हमेशा नहीं दिया जाता। इसके लिए एक टाइम पीरियड होता है, मतलब 20 डेज होता है, 30 डेज होता है। जैसे फाइन लगता है ना, अगर आप सीआई की फीस जो है वो 5 अगस्त लास्ट डेट है, अगर आप 5 अगस्त तक सबमिट नहीं करेंगे तो उसके बाद फाइन लगता है, मतलब वो फीस डबल हो जाती है। तो ऐसे ही हम जब डिस्काउंट दे रहे होते हैं तो उसके एक टाइम पीरियड रखते हैं कि भाई फला डेट तक, 20 दिनों के अंदर अगर आपने दिया तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही जब हम डिस्काउंट देते हैं तो हमें भी मिलता है। डिस्काउंट रिसीव कब आता है? डिस्काउंट रिसीव इज गिवन बाय सप्लायर, इज गिवन बाय credit suppliers to pay the dues, to pay the dues quickly। अच्छा, ये डिस्काउंट हमें सप्लायर देता है जिसको हम पेमेंट करते हैं, और डिस्काउंट अलाउड हम देते हैं, इसलिए उसको डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। और डिस्काउंट रिसीव क्या होता है? ये हमें सप्लायर देता है जिससे हमने परचेज किया होता है माल। तो जाहिर है हम उसको पैसे कम देंगे। मतलब अगर हमें 10,000 देने थे तो अब 7,000 देंगे, 6,000 देंगे, पैसे बच जाएंगे। इसीलिए हम उसको डिस्काउंट रिसीव का वर्ड कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक बातें क्लियर है कि कैश डिस्काउंट जो वो प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। अब वो रिकॉर्ड कैसे होता है आपको समझा रहा हूँ। बाकी डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, ये क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब इसकी एंट्री भी समझाता हूँ, टेंशन ना लें। अब देखिए ये जो है ना, ये वाला जो डिस्काउंट है, ये डी दोनों डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट आ रहा है डिपॉजिट साइड। किस साइड पे? डिपॉजिट साइड पे। यानी जब हम पैसे रिसीव करते हैं तब अराइज होता है। और ये वाला डिस्काउंट तब आता है जब हम पेमेंट करते हैं, जब हम किसी को पैसे दे रहे होते हैं। तो ये डिस्काउंट तब अराइज होते हैं जब हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट किसको करते हैं? सप्लायर को करते हैं। और ये डिस्काउंट तब अराइज होता है जब पैसे आ रहे होते हैं, मतलब कस्टमर पैसे दे रहा होता है। तो ये डिस्काउंट तब अराइज होता है। तो मुझे बताइए कौन सा वाला डिस्काउंट होगा, अलाउड होगा या रिसीव्ड होगा? अगर हम कस्टमर से पैसे रिसीव कर रहे हैं तो फिर हम ये डिस्काउंट आता है उस वक्त। तो ये कौन सा डिस्काउंट होगा? अलाउड वाला होगा या फिर रिसीव वाला होगा? अलाउड वाला होगा। जी बेटा, बाकी बताएं। शाबाश बेटा, ये जो डिस्काउंट है ये अलाउड वाला है, क्योंकि जब हम कस्टमर से पैसे रिसीव करते हैं तब हम देते हैं। ठीक है, अच्छा जी। आई डोंट नो बेटा, आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है? आप लोगों को स्क्रीन सही शो हो रही है? इज देयर एनी इशू, नेट प्रॉब्लम? अच्छा अच्छा, ओके। और ये वाला जो डिस्काउंट होगा बेटा, ये रिसीव्ड होगा। ठीक है, अच्छा जी। ओके ओके, नो इशू बेटा, नो इशू, नो इशू, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा अब इसकी एंट्री कैसे आती है ये सिखा दूं पहले आपको। इसका डिस्काउंट का पता कैसे चलेगा? ट्रेड डिस्काउंट में तो ट्रेड डिस्काउंट का वर्ड होता है, कैश डिस्काउंट में कैश डिस्काउंट का वर्ड होता है। मैं जरा बताता हूँ इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। पेपर में आएगा ABC who owes $300 paid a check of $270 after deducting 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये एंट्री आएगी पेपर में। बहुत सारी आती है, मैं सारी बता रहा हूँ। ABC who owes $300 paid a check of $270 after deducting 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो मैं यहाँ रफ बना रहा हूँ, ये हमारी कैश बुक है। कैश बुक में एक डेबिट साइड होती है
एक हमारे पास क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड ये वाली है, डेबिट साइड ये वाली है। तो इसमें एक बैंक कॉलम होगा, एक कैश कॉलम होगा, एक डिस्काउंट कॉलम होगा। ठीक है, डेबिट साइड डिस्काउंट हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया। और ऐसे ही ये वाली साइड क्रेडिट साइड है। ठीक है। सो एबीसी ओज $300 पेड अ चेक ऑफ 270। चेक कितने का दिया उसने मुझे? चेक कितने का दिया गाइस? जी। और क्या एंट्री होगी इसकी? आई नीड द आंसर। सर 270 का चेक दिया है, तो क्या डेबिट करेंगे, कैश या बैंक? बी क्विक गाइस। शाबाश। हम बैंक को डेबिट करेंगे 270 से, रेफरेंस में लिखेंगे ABC। लेकिन ये इसने एक और बात बोली है, आफ्टर डिडक्टिंग 10% कैश डिस्काउंट। तो इसका मतलब डिस्काउंट भी हमने दिया है उसको। तो वो डिस्काउंट कैसे मालूम करेंगे? कोई मसला नहीं है। आपको जो असल अमाउंट दिया, असल अमाउंट जो वो ओ करता था, जो ड्यू अमाउंट था, जो उसका बैलेंस था, उस पर लगेगा ये 10%। जो पैसे दिए उसमें नहीं, जो असल अमाउंट है। ये तो पेमेंट माइनस करके दी ना डिस्काउंट। तो डिस्काउंट की परसेंटेज उस पर लगती है जो ओरिजिनल अमाउंट होता है, जो डिस्काउंट से पहले होता है। तो उसने लिख कर दिया होगा कि उसका बैलेंस कितना था, उसका अमाउंट कितना था, उस पर हम लगाएंगे। तो 300 का आप लोग 10% फाइन करें, कितना आएगा? 300 का 10% फाइन करें तो बेटा कितना आएगा? 30 आएगा। ये 30 हम यहाँ डिस्काउंट के कॉलम में लिखेंगे। मतलब हमें एक ही लाइन में। Really sorry. यस यस। My battery died. So like my mobile like shut down. I just rejoined. Okay, beta, no issue. I will send the recording as well. I will send you the recording as well, and there is no issue, no problem. I will explain you. Okay. ठीक है बेटा। देखिए बेटा, मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ, ABC ओज $300। ओज का मतलब यानी उसने देने हैं। यानी मैंने बताया था बच्चों को कि समटाइम्स जब पेपर में ओ आता है तो वो बैलेंस की निशानदेही कर रहा होता है, वो अकाउंट की निशानदेही कर रहा होता है। सो ABC इज हैविंग अ बैलेंस ऑफ 300। ही इज अवर कस्टमर। ABC ने देने हैं, ओज मीन्स टू पे। So a customer is having a balance of 300. He has to pay a balance of 300. He paid a check of 270. उसने में 270 दिए, तो चेक 270 का था। इसका मतलब बैंक में कितने पैसे है? 270। तो बैंक को मैंने डेबिट किया 270 से। लेकिन आगे कह रहा है आफ्टर डिडक्टिंग 10% कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना था ये मैं मालूम करना पड़ेगा। जब सवाल में कैश डिस्काउंट का वर्ड आ जाए, कौन सा वर्ड आ जाए? कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट की रकम भी रिकॉर्ड होती है, लिखना पड़ता है। उसके लिए प्रॉपर कॉलम होते हैं, टी अकाउंट होते हैं, तो वो फाइंड करना जरूरी है। तो यहाँ मैंने बच्चों को बताया कि 10% अगर लिख कर दिया हुआ है तो कोशिश करो ये परसेंटेज ओरिजिनल अमाउंट पे लगाओ, जो ओरिजिनल अमाउंट था, जो ड्यू अमाउंट था, उस पे लगाओ। तो वो कितना था? 300 था। 300 का 10% फाइंड किया, वी गॉट 30। वो 30 डिस्काउंट के कॉलम में लिखा, 270 का चेक बैंक के कॉलम में लिखा, और रेफरेंस आ गया ABC। हैव यू गॉट दिस? Yes. Okay, okay. I would explain one more example. I would explain one more example. Yes, we will record the entry in ABC account as well. शिजा बेटा, मैं असल में भी कैश बुक में लगा हुआ हूँ ना, तो मैं नेक्स्ट क्लास में अदर टी अकाउंट्स भी सिखाऊंगा कि ये कैसे मिलता है। ठीक है। एक और ट्रांजेक्शन दे रहा हूँ। We paid XYZ $450. We paid XYZ $450. Sorry, a check of $450. A check of dollar. We paid XYZ a check of $450 after deducting cash discount of, कभी कभार परसेंटेज देगा, कभी कभार अमाउंट देगा। अमाउंट देगा तो बहुत आसान है, a cash discount of $50। इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे?
आई एम आस्किंग फ्रॉम यू ऑल, इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हमने एक पेमेंट की है XYZ को, अभी हम कैश बुक बना रहे हैं, हाउ वी विल रिकॉर्ड दिस? यू कैन आंसर मी इन चैट एज वेल। शाबाश। बैंक क्या होगा? बैंक, सर हमने चेक कितने का दिया है? चेक कितने का दिया है? 450 का। तो जो भी बैंक अकाउंट है, मोटरसाइकिल बदलो जरा उसामा, जरा। ये बैंक है, ये कैश है, और ये डिस्काउंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बैंक के कॉलम में जाके लिखेंगे 450, 450। उसके बाद शाबाश बेटा, महा बेटा यू आर राइट, हम क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट की रकम कितनी है? लिखी हुई है। समटाइम परसेंटेज होगी, समटाइम रकम दी हुई है। तो यहाँ लिखी हुई 50, हम डिस्काउंट के कॉलम में जाके लिखेंगे 50। अमूमन इनके साथ दोस्ती वाला रिश्ता होता है, जब हम कैश बुक बनाते हैं ना, तो बैंक क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, बैंक डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, एक ही साइड पर आता है। जो ट्रांजेक्शन होती है उसी के हिसाब से डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। अगर पेमेंट हो रही है तो डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे आएगा, पैसे आ रहे हैं आपके पास, कस्टमर आपको दे रहा है, तो डिस्काउंट डेबिट होगा। और रेफरेंस में क्या आएगा? XYZ। इसके अलावा हम XYZ का अकाउंट भी बनाएंगे, उसमें कैसे एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, ABC का अकाउंट भी बनाएंगे, उसमें कैसे एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, मजीद कैश डिस्काउंट की एंट्रीज कैसे होती हैं, कैसे पता लगता है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नहीं, माइनस नहीं करेंगे बेटा, इसलिए लिखा हुआ है आफ्टर डिडक्टिंग। मैं माइनस कर चुका है ना, हमने जो चेक दिया है 450 का, उसमें से हम डिस्काउंट माइनस कर चुके हैं। और आप खुद बताएं, अगर हम किसी को पैसे देंगे तो डिस्काउंट माइनस करके ही देंगे, या पहले पैसे देंगे डिस्काउंट बाद में माइनस करेंगे? जाहिर है डिस्काउंट माइनस करके देंगे ना आप तो। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, कोई सवाल हो तो बताएं। जी। जी गाइस, नो क्वेश्चन, ओके बेटा, ओके बेटा। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।